Hello student, how are you? Let's now today we will start class 9 mathematics chapter 3 coordinate geometry, and this is very important chapter for 9th and for 10th and also for higher classes. Here we will study only the basic concept of coordinate geometry, means how to locate a point. Before starting the chapter, we have to know what is the meaning of coordinate geometry. Coordinate geometry, it indicate GEO, geometry, GEOMETRY. Metry means measurement, geo means earth or any shape, means measurement of a shape or the measurement of the earth. Earth is like in a given shape, and the shape may be a triangle, shape may be a circle, shape may be a oval, means ellipse. These are the different shape we can measure, and these shape can be measured with the help of location of a point. It means coordinate geometry is used to measure the shape and size or location of a point of an object. अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, एक पर्टिकुलर पॉइंट्स का या एक पर्टिकुलर हाउस का लोकेशन फाइंड आउट करना चाहें, दैट वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. अगर मान लो मैं पूछूं हाउ कि एक रोड है, मेरा घर गली नंबर 2 में मकान नंबर 5 है, तो इट मीन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. तो इसका मतलब ईस्ट की तरफ मेरा घर, गली नंबर कौन सा, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो जो पहली गली आएगी, दूसरी गली आएगी, तीसरी गली आएगी, मीन्स दिस इज द स्ट्रीट 1 एंड दिस इज स्ट्रीट 2 एंड दिस इज स्ट्रीट 3 एंड दिस इज स्ट्रीट 4. अगर हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ जाएंगे, जो तीसरे नंबर गली है उस गली में मकान नंबर कौन सा, 1 2 3 4 और ये 5. हेयर इज 1 2 3 4, here is. तो इसका मतलब we have to move horizontal distance and then turn to the left, means पहले west से east की तरफ आएंगे and then move toward the left and then search house number 5. This is the location of the point which indicate the coordinate geometry. Means it is used to find out the location of a point or the measurement of the shape and size of an object. अभी कहोगे जी कैसे शेप और साइज को मेजरमेंट करेंगे, लास्ट में हम जब ग्राफ बनाएंगे देन वी विल एक्सप्लेन. इट मीन जनरली इट इज यूज्ड टू ड्रॉ द ग्राफ. ये जो है जनरली हम किस में ड्रॉ करते हैं, ग्राफ में ड्रॉ करते हैं. और किसी भी अर्थ में किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे इंडिया है या इंडिया में एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया, स्टेट कहां पर लोकेट होगा, तो हम इजीली, अगर हमें उसका लैटिट्यूड, अगर हमें उसका अल्टीट्यूड पता होगा तो इजीली वी कैन फाइंड आउट इट्स लोकेशन. अब जैसे मान लो इन क्लासरूम, हैव यू सीन योर क्लासरूम. अगर आपने क्लासरूम में देखते हो, इफ द न्यू टीचर विल कम इन योर क्लास 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4. Here is, if the teacher is sitting at here. This is according to him, it is row 1, it is row 2, it is row 3, it is row 4. It is column 1, column 2, column 3, column 4, column 5. And teacher is sitting at here. If he want to call the student, if the teacher does not know the name of the student, अगर टीचर को बच्चे का नाम नहीं पता तो he want to call
दिस स्टूडेंट, वो स्टूडेंट पी को कॉल करना चाह रहा है। एक स्टूडेंट है जिसका नाम पी है, उस पी स्टूडेंट को वो बुलाना चाह रहा है, तो वो कैसे बुलाएगा? बिकॉज ही डज नॉट नो द नेम ऑफ द स्टूडेंट, उस बच्चे का नाम नहीं पता, तो हाउ ही विल कॉल? वो ये कहेगा कि सेकंड रो के कौन से कॉलम में? थर्ड कॉलम में जो बच्चा है। अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट ही विल से, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, मींस सेकंड रो का जो थर्ड कॉलम, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इसके हिसाब से क्या हुआ है? दिस लोकेशन इज सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, मींस स्टूडेंट हु सिट एट second row and third column stand up. So it means this indicate the location of the point. Location of the point. This location of the point we can determine in a Cartesian. इसको हम Cartesian में find out कर सकते हैं. What is the Cartesian? Is a plane. Cartesian plane भी बोलते हैं. And what is the plane figure? Two-dimensional figure is known as plane figure, which has length and breadth, or we can say length and breadth mean height भी कह सकते हैं. This face of the blackboard is the Cartesian plane. It has two dimensions. One is length, horizontal line, another is breadth, vertical line. This coordinate geometry we can represent in a Cartesian plane in horizontal line and in a vertical line. And what is horizontal line and what is vertical line? This horizontal line we can represent. Have you seen number line? This is the representation of a number line. This is line. Here is 0 toward the right. Here is 1, 2, 3, 4, 5. Here is -1, -2, -3. ये हमारे पास कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन में ये जो पॉइंट है हमारा क्या है? सेंटर में 0. इसे हम बोलते हैं ओरिजिन. क्या बोलते हैं इसे? ओरिजिन. और राइट की तरफ पॉजिटिव वैल्यू, लेफ्ट की तरफ नेगेटिव वैल्यू. इस हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे हम नंबर लाइन भी बोलते हैं, और एक नंबर लाइन हमारी क्या है? वर्टिकल. Here is again, this is a line which is vertical line, and here is origin 0, 1, -1, -2, -3, -4. Here is 1, 2, 3, 4. एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन. वर्टिकल लाइन में भी बीच में क्या है बेटे? 0. 0 मीन्स ओरिजिन. इस 0 के नीचे क्या है? नेगेटिव नंबर. इस 0 के ऊपर पॉजिटिव नंबर. जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस. क्या बोलते हैं इसे? एक्स एक्सिस. हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज एक्स एक्सिस, एंड इसे हम साथ में बोलते हैं एब्सिसा. क्या बोलते हैं इसे? एब्सिसा. एंड द वर्टिकल लाइन इज नोन एज वाई एक्सिस. क्या बोलेंगे इसे? वाई एक्सिस. और इसे साथ में क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट. Horizontal line is x-axis, vertical line is y-axis. Here is 0 on horizontal line, which is known as x-axis, On the right of the 0, the x will be positive. On the left of the 0, x will be negative. 0 की राइट की तरफ x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, 0 की लेफ्ट की तरफ x की वैल्यू नेगेटिव होगी. And in vertical line, which is known as y-axis or the ordinate, 0 is the origin, or generally we say this is also the reference point. जिसे हम origin बोलेंगे वो हमारा reference point भी कहलाएगा. This origin reference point on vertical line below the zero, there will be a negative value of y. एंड अबव द 0 द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y. इसका मतलब 0 के ऊपर y पॉजिटिव होगा, 0 के नीचे y नेगेटिव होगा. तो इसे हम बोलेंगे क्या? y डैश मींस y नेगेटिव. 0 के ऊपर ये y
पॉजिटिव, एंड हियर इज, इधर की तरफ बोलेंगे x, o x रिप्रेजेंट द पॉजिटिव, हियर इज x dash मीन नेगेटिव. o x is the line represent the positive side of the zero, means the point which lie on o x will be always positive, and o x dash be the negative side of this horizontal line, means the point which lie on the left side on o x dash will always negative. Here is o y dash is represent the negative side of the line, and the point which lie on o y dash will always negative below the horizon, and o y represent the positive side of the y axis, means the point which lie on o y always positive. इन दोनों एक्सिस को अगर हम मिला दें तो इस ओरिजिन को ओरिजिन के साथ हम क्या करते हैं, कोइंसाइड कर दें. क्या कर दें, कोइंसाइड कर दें. अगर इस ओरिजिन को हम कोइंसाइड कर दें, ये ओरिजिन था, ये वाई एक्सिस था, दिस इज द वाई, इट इज वाई. हियर इज, दिस इज एक्स एक्सिस, हियर इज वाई एक्सिस, here is y negative, here is x negative, x positive, here is o is the reference point. Origin, what is origin? Origin is the point where the two axes intersect, means plane always represent two axes. One is horizontal, which is known as x axis or abscissa, and other is vertical, विच इज वाई एक्सिस और ऑर्डिनेट. एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी एक्स एक्सिस की, एक वर्टिकल लाइन होगी वाई एक्सिस की. जहां पर दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन. ओ इज द ओरिजिन. ओरिजिन मीन्स रेफरेंस पॉइंट. ओ इज द रेफरेंस पॉइंट और द ओरिजिन वेयर द टू एक्सिस, two line, horizontal line or vertical line or two axis, x axis and y axis intersect, means o is the origin is the point of intersection of two axes, and these two axes, one is horizontal another is vertical, divide the plane in 4 part, 1 2 3 and 4 part, and this right of the origin the x will be positive, means 1 2 3 4 5. Left of the origin -1 -2 -3 -4 and -5. Here is -1 -2 -3 -4 -5. Here is 1 2 3 4 5 and 6. Right of the origin is positive, left of the origin negative, above of the origin positive, below of the origin negative. ये जो दो एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, इसने इस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 and 4. एक पार्ट फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट, एंड दिस इज थर्ड पार्ट, एंड दिस इज फोर्थ पार्ट. इन 4 पार्ट को 1 2 3 4, इन 4 पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट. क्या बोलेंगे, द एक्सिस, कौन से एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, डिवाइड द प्लेन इन 4 part, and each part is known as quadrant. क्या बोलेंगे उसे, quadrant. If a point, here is the point, if we have given a point P, this is the first quadrant, this is second, this is third,
and this is fourth. It means two axes divide the plane in four quadrants: first quadrant, second quadrant, third quadrant, and fourth quadrant. And now which quadrant has x positive, x negative, y positive, and y negative? If we have given one point P at here and one point here is Q. If we want to determine the position of the point P, इस P की पोजीशन क्या होगी? प्लीज बी लिसन केयरफुली. अगर मैंने इसे ले लिया P और इस यहां से इस P से हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर y एक्सिस के ऊपर. P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किसके ऊपर? y एक्सिस के ऊपर. इसका नाम रख दिया मैंने M. P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे x एक्सिस के ऊपर. इसका नाम रख दिया N. किसी भी पॉइंट का हमने पोजीशन या लोकेशन निकालने के लिए क्या करेंगे? उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे x एक्सिस के ऊपर, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे y एक्सिस के ऊपर. ये जो P पॉइंट है इस y एक्सिस से कितनी दूरी पर है? ये वाली दूरी है. इट मीन P इज द पॉइंट इज हाउ मच डिस्टेंस अवे फ्रॉम y एक्सिस. y एक्सिस से कितनी दूरी पर है? जो ये MP का डिस्टेंस है वही किसका होगा? ON का. इट मीन MP इक्वल टू ON और वो कितना है? MP इक्वल टू ON इज इक्वल टू 2 यूनिट. हम ये बोल सकते हैं P जो है P इज द पॉइंट विच इज 2 यूनिट अवे फ्रॉम द y एक्सिस और दैट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस. y एक्सिस से P जो है 2 यूनिट की दूरी पर है. अगर हम पूछूं ये P पॉइंट x एक्सिस से कितनी दूरी पर है? ये x एक्सिस है तो इट मीन यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो कितनी दूरी पर है? जो दूरी है NP इक्वल टू किसके बराबर? OM. NP इक्वल टू OM इज इक्वल टू कितना है? 4. इट इज 4 यूनिट. तो इट मीन P पॉइंट x एक्सिस से कितने यूनिट दूरी पर है? x एक्सिस से 4 यूनिट दूरी पर है, y एक्सिस से 2 यूनिट पर दूरी पर है. तो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम y एक्सिस इज 2 यूनिट एंड फ्रॉम x एक्सिस इट इज 4 यूनिट. अब इसका मतलब क्या है? P जो है 2 यूनिट पॉजिटिव अलोंग द x एक्सिस. प्लीज लिसन केयरफुली. जो P जो पॉइंट है ओरिजिन से 2 यूनिट किधर की तरफ? पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ है. इसका मतलब x इज पॉजिटिव. x इज पॉजिटिव. हाउ मच वैल्यू इज 2 यूनिट पॉजिटिव साइड ऑफ द x एक्सिस. इसका मतलब x से हमारा 2 यूनिट पॉजिटिव है और y इसका मतलब ये y कितना है बेटे? 4 यूनिट. कितना है? 4 यूनिट. तो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दिस? फर्स्ट वी विल टेक हॉरिजॉन्टल लाइन, देन वी विल टेक वर्टिकल लाइन. जैसे पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन कवर करेंगे उसके बाद वर्टिकल. पहले वर्टिकल नहीं जाएंगे. फर्स्ट वी मूव हॉरिजॉन्टल देन वर्टिकल. और जो मेरा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम क्या बोल रहे हैं? x. इट इज x कोऑर्डिनेट. और जो वर्टिकल लाइन है उसे हम क्या बोल रहे हैं? y कोऑर्डिनेट. इट मीन x, y is the location of point P, whereas x is 2 unit positive और y is 4 unit positive. It mean ये 2 और ये 4. This is the x. इसका मतलब ये हुआ x जो है कितने पॉइंट पर है? 2 पॉइंट पर. और y कौन से पॉइंट पर है? 4 पर. इसका मतलब P जो पॉइंट है वो x एक्सिस के 2 पॉइंट और y एक्सिस के 4 पॉइंट में लाई करता है. दिस फर्स्ट इज नोन एज पॉइंट ऑन x एक्सिस एंड दिस इज सेकंड y एक्सिस. और इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर. इसको हम क्या बोलते हैं? x, y. इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर. इट इज नोन एज ऑर्डर्ड पेयर. इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर. अब Q
ये पॉइंट है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वाई एक्सिस पर, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स पर। तो इट मीन इसका मतलब Q जो है कितनी दूरी पर है, x से कितनी दूरी पर है, 5 यूनिट की दूरी पर है। देखिए Q R और O S, इसका मतलब Q R इज इक्वल टू O S मीन्स दिस Q इज -5 अवे फ्रॉम y x एक्सिस, और ये जो Q है y एक्सिस से कितनी दूरी पर है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस कितनी दूरी पर है, 2 यूनिट, और 2 यूनिट किधर की तरफ, ऑन द नेगेटिव साइड, ऑन द नेगेटिव साइड। इसका मतलब व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, व्हाट इज द सॉरी ऑर्डर पेयर, x कितना है -2, पहले x और फिर y -5, दिस इज x एंड दिस इज y, x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू -5, and this x comma y is known as ordered pair which represent always in Cartesian plane, and the first point is known as x axis, second point is known as y axis. Is it clear? And if the point, अगर पॉइंट केवल यहां पर है 3 है P R, तो what is the position of this R, इस R की पोजिशन, फर्स्ट वी विल मूव हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल कितना है 3 और वर्टिकल x एक्सिस पर है। इस x एक्सिस पर उसने वर्टिकल डिस्टेंस कवर नहीं किया, तो इट मीन x 3 और y 0। वी कैन से द पॉइंट ऑन x एक्सिस, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑन x एक्सिस। पॉइंट ऑन x एक्सिस मींस 3,0, ये किसकी वैल्यू है, x की, ये किसकी वैल्यू है, y की। इफ आई टेक एनी पॉइंट ऑन here is T, what is the position of point T, तो it is x axis, it is y axis, x axis नो मूवमेंट, ना लाइट ना लेफ्ट और ना राइट, कोई भी डिस्टेंस नहीं है, तो x क्या हो गया 0 और y क्या हो गया -3। इसका मतलब 0,3 here is the value of x। इसका मतलब ये पॉइंट किस पर लाई है, y एक्सिस पर, ये पॉइंट किस पर लाई है, y एक्सिस पर। यहां किसके वैल्यू 0 है, y की, किसकी वैल्यू गिवन है, x की, तो इसका मतलब दिस लाई ऑन x एक्सिस। इट मीन 4,0 इज द पॉइंट किस पर लाई करेगा, लाई ऑन x एक्सिस, लाई ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पर लाई है। 0,-3 लाई ऑन किस पर, लाइज ऑन y एक्सिस, ये आएगा। अब हमने पढ़े 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. Now listen carefully. Here is first quadrant, second quadrant, third quadrant, first quadrant, it is the first quadrant. Here is second quadrant, here is third quadrant, here is fourth quadrant. Now listen, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये और ये सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो इट मीन ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है किधर की तरफ आ रहा है, राइट की तरफ, और किधर की तरफ, ऊपर। राइट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, और ऊपर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। इसका मतलब x पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, मीन x will positive और y will negative। और इसके पॉइंट क्या होंगे, प्लस कॉमा प्लस, x भी प्लस और y भी प्लस होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट, ओरिजिन ये रहा किधर की तरफ, लेफ्ट, इसका मतलब x कहां है, लेफ्ट, तो x will be negative, x will negative, और y अपवर्ड मीन्स y will पॉजिटिव, y will पॉजिटिव। तो इट मीन क्या लिखेंगे, माइनस कॉमा प्लस, x नेगेटिव और y पॉजिटिव। कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट, व्हाट वी विल चेक इट, इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, x इज लेफ्ट साइड और y
बिलो द ओरिजिन डाउनवर्ड, तो इट मीन x विल नेगेटिव और y विल नेगेटिव। तो इसको हम क्या बोलेंगे माइनस कॉमा माइनस। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट राइट मीन राइट ऑफ ओरिजिन, तो x विल राइट ऑफ ओरिजिन मीन पॉजिटिव, x विल पॉजिटिव और y विल नेगेटिव। तो ये क्या आएगा प्लस और ये माइनस। इट मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव। एंड द x एक्सिस एंड पॉइंट ऑन x एक्सिस, इसका मतलब दिस इज 3,0 means we can say x, 0. And now briefly we have to note it down. So what is origin? Origin is the point where the two axes intersect, जो हमने पढ़ा है। Second, horizontal line is known as x axis and abscissa vertical line is known as y axis। and first quadrant means plus comma plus means example 3,2। second quadrant minus comma plus means x minus y plus example -2,3। and the third quadrant क्या होगा x भी माइनस और y भी माइनस, एग्जाम्पल -2 -3। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट विल बी x प्लस और y माइनस, एग्जाम्पल 3,-1। पॉइंट ऑन x एक्सिस x, 0 means example 3,0। point on y axis means 0, y, example 0, -2। x, y is the ordered pair of Cartesian और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। दिस इज आल्सो नोन एज कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। एंड नाउ हाउ वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ए पॉइंट। देखिए ध्यान से, दीज आर द पॉइंट यू हैव टू रिवाइज प्लीज। Here is 0, x dash, now find the coordinate of a के कोऑर्डिनेट। तो यहां इस a से इसके ऊपर क्या ड्रॉ करेंगे, y एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर, और किसके ऊपर परपेंडिकुलर करेंगे, x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर। तो व्हाट इज x एक्सिस, दिस इज 2। व्हाट इज y एक्सिस, दिस इज 4। इट मीन 2,4। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, तो हम क्या बोलेंगे 2,4। अगर वो पूछता है व्हाट इज द एब्सिस ऑफ ए, एब्सिस ऑफ ए इज 2 एंड ऑर्डिनेट ऑफ ए इज 4। व्हाट इज द एब्सिस ऑफ ए, 2, ऑर्डिनेट्स ऑफ ए 4। व्हाट इज द ऑर्डर्ड पेयर, 2,4 मींस कोऑर्डिनेट 2,4। और एक क्वेश्चन बनता है, ध्यान से प्लीज, कि जो जो पॉइंट है वो y एक्सिस से कितनी दूरी पर है, y एक्सिस से कितनी दूरी पर है। तो इट मीन दिस इज y एक्सिस से दूरी ये हो जाएगी, दिस इज 2,
वाई एक्सिस से कितना दूर है 2, एक्स एक्सिस से कितना दूर है 4। प्लीज दिस इज 2 इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम वाई एक्सिस एंड दिस 4 इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से 4 यूनिट दूरी पर है, वाई एक्सिस से 2 यूनिट पर दूरी। इज इट क्लियर? कोऑर्डिनेट ऑफ ए 2 फर्स्ट हमेशा क्या लिखेंगे x, फिर क्या लिखेंगे y। x एब्सिस है इसका 2, ऑर्डिनेट इसका 4। फिर व्हाट इज b? b ये रहा पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिस एंड दिस। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट क्या बोलेंगे इसके? पहले कौन सा x, व्हाट इज x? दिस इज x 3, पहले x का पॉइंट फिर y का पॉइंट -4। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ b? 3 से b से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर किया, तो कोऑर्डिनेट ऑफ b 3, -4, एब्सिस कितना 3, ऑर्डिनेट कितना -4। तो कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में चेक करिए x पॉजिटिव और y नेगेटिव। ए हमारा कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। एंड नाउ मूव टू c। c के कोऑर्डिनेट, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ c? अब कोऑर्डिनेट ऑफ c देखोगे ये x एक्सिस पर लाई है, देयर इज ए नो वर्टिकल डिस्टेंस। x एक्सिस पर लाई है, x एक्सिस पर हमेशा y की वैल्यू 0 होगी। इट मीन ओरिजिन से कितना दूर है 6, तो इसका मतलब x इज 6 एंड y इज 0। तो इसे हम किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं गिनेंगे। अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर लाई कर रहा है या y एक्सिस पर लाई कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? इट लाई ऑन x एक्सिस और y एक्सिस बट इट डज नॉट लाई इन एनी क्वाड्रेंट। C is the point which lie on x axis. What are the coordinate of x axis? C 6, 0 means 6 is the C जो है 6 यूनिट, ये 6 यूनिट किससे? y से 6 यूनिट की दूरी पर देखिए, y 6 यूनिट की दूरी पर है। D, here is D। अब क्या करेंगे बोलिए? Just tell me how we can find out the coordinate of D. Find yourself। D, E और F के कोऑर्डिनेट अपने आप बताएंगे। F D, E, F के कोऑर्डिनेट एब्सिसा और सब यू। D के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे x के ऊपर, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे y के ऊपर। पहला कोऑर्डिनेट किसका लिखेंगे? x का। ये x का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिखेंगे, कितना है? दिस इज -5 और वर्टिकल, और ये क्या आएगा? वर्टिकल कितना है 3, तो दिस इज 5 और ये 3। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y पॉजिटिव। x नेगेटिव और y, देखिए मैंने लिखवा रखा है नेगेटिव प्लस मीन x नेगेटिव और y पॉजिटिव। चेक करिए, एब्सिसा इज -5, ऑर्डिनेट इज 3। एब्सिसा इज -5, ऑर्डिनेट इज 3। एंड नाउ E, here is E। E is the point which lie on y axis। कौन से एक्सिस पर लाई कर रहा है? y पर लाई कर रहा है। तो y पर पॉइंट ऑन y एक्सिस, जो पॉइंट y पर लाई करेगा उसमें x की वैल्यू 0 होगी। तो x क्या होगा इसमें? 0 और y के पॉइंट क्या हो गए? 5। तो E के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? दिस इज E 0,5। 0,5 मीन्स इट डज नॉट लाई इन एनी क्वाड्रेंट, इट लाई ऑन y एक्सिस, क्योंकि x 0 है और y कितना है 5। अगर y 5 है तो इसका मतलब E जो पॉइंट है वो x एक्सिस से 5 यूनिट की दूरी पर है। Here is F। यहां से ये आ गया परपेंडिकुलर, F से परपेंडिकुलर इसके ऊपर और F से परपेंडिकुलर इसके ऊपर। इट मीन व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ F? पहले कौन से लेंगे? x एक्सिस। Here is x एक्सिस इज -2 and y axis is -6, -2, -6, दोनों नेगेटिव, x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। जब x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव तो कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। एब्सिसा इज -2, ऑर्डिनेट इज -6। इट मीन f जो पॉइंट है वो क्या है? -2। इट मीन
y एक्सिस से 2 यूनिट की दूरी पर है, बट टुवर्ड द नेगेटिव ऑफ किधर की तरफ, x की तरफ। और ये क्या है, x से कितने यूनिट दूरी पर है, 6 यूनिट, टुवर्ड द नेगेटिव ऑफ y एक्सिस के नेगेटिव की तरफ। In this way we can find out the position of a point A and B, C, D कोऑर्डिनेट के हम पॉइंट निकाल सकते हैं। इसी हिसाब से हम ये भी बता सकते हैं कि इन विच क्वाड्रेंट दे लाई। इज इट क्लियर? अब आप बताना ध्यान से, वन क्वेश्चन आई एम गिविंग यू एंड यू हैव टू डू योरसेल्फ। Name the quadrant of following point and also locate in graph A 3,2, B -3,1, C -3, -4, D 0,2, -2। पहले मुझे क्वाड्रेंट बताएंगे आप। ये मेरे पास ए है, क्या लिख रहा है, क्वाड्रेंट बताना है और इनको लोकेट भी करना है, वेरीफाई करना है बाय लोकेटिंग। फर्स्ट ए 3, 2, 3 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव क्वाड्रेंट। व्हाट इज द क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। कैसे चेक करेंगे, x3, तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। हमेशा पहले हॉरिजॉन्टल का डिस्टेंस कवर करेंगे या हॉरिजॉन्टल लाइन जाएंगे। 3 फर्स्ट वी विल मूव टू 3, ये 3 आ गया, एंड 2 मीन y एक्सिस, हियर इज दिस इज 2 एंड नाउ मूव टुवर्ड दिस वे, एंड यहां से 3 ये आ गया। The point of intersection, this is perpendicular distance 2 ये रहा, x is 3, y is 2 and they will intersect। यहां से इसको बढ़ा देंगे, यहां से इसको बढ़ा देंगे। This is name is A 3,2 and lie in first quadrant। ये भी बताइए, पहले क्वाड्रेंट बताइए, -3,1। फर्स्ट टेल मी द नेम ऑफ द क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में, सोचिए, थिंक। x नेगेटिव y पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। देखिए x -3, ओरिजिन से -3 कहां जाएंगे, ये रहा -3, इट इज -3, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंड नाउ 1 b, दिस इज x, दिस इज y, 1 इज y, ये रहा पॉजिटिव, एंड टू पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू या पैरेलल टू x एक्सिस, हियर इज b, इट मीन दिस इज -3 एंड y इज 1, -3 and y is 1, तो इट मीन -3,1, तो कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। एंड नाउ -3 -4, नेम द क्वाड्रेंट। फर्स्ट टेल मी द नेम ऑफ क्वाड्रेंट, बताइए जरा कौन से क्वाड्रेंट में, x भी माइनस y भी माइनस, x भी माइनस y भी माइनस, शाबाश, बोलिए कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए x -3, दिस इज -3 परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और y -4, माइनस भी नीचे, -1 -2 -3 -4, एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। व्हाट इज दिस, c। देखिए x -3 और y -4, यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर, यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर, जहां मिले यू कैन रब इट। अगर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो तो वेल एंड गुड, डायरेक्ट बताएंगे आपको क्या आएगा, हियर इज -3 और -4, एब्सिसा -3 ऑर्डिनेट -4, एब्सिसा -3 ऑर्डिनेट 1, एब्सिसा -3 ऑर्डिनेट 2, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, एंड मूव टू 0, -2, हियर इज 0 -2, नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस कहां आएगा, नीचे आएगा, 1 and 2, दिस इज सिंपली, दिस इज d, x is 0 and y is -2. It means D is the point does not lie in any quadrant. It lie on किसमें, x एक्सिस में। कितने, कौन से एक्सिस में, x एक्सिस में, 0, -2। इज इट क्लियर? अगर एक क्वेश्चन पूछता है a 3, -3,2, what is the distance, perpendicular distance of a
प्लीज जरा ध्यान से जवाब दीजिए इसका। व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम वाई एक्सिस? वाई एक्सिस से ए कितने दूरी पर है? वाई से कितनी दूरी पर है? 3 या 2? बोलिए, ए जो पॉइंट है वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है? चेक इट, आप बताइए। आपके सामने ग्राफ भी है और पॉइंट भी है, मैंने आपको बता रखा है। ए जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है? अब जरा ध्यान से देखिए, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ए, वाई एक्सिस दिस वन, कितनी दूरी पर है? दिस इज हाउ मच? दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस, तो ये 3 आ गया, तो दिस इज ये आ गया। इसका मतलब अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से पूछता है तो y का पॉइंट होगा, अगर y एक्सिस से पूछता है तो x का पॉइंट होगा। इसका मतलब 3 इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ a फ्रॉम y एक्सिस एंड 2 यूनिट इज द डिस्टेंस ऑफ a फ्रॉम किसे? x एक्सिस से। चेक करिए, ये x एक्सिस से कितनी दूरी पर है? 2 यूनिट की दूरी पर। देखिए ये दोनों से 2 यूनिट की दूरी पर है। अब ये जरूरी नहीं है कि हम इससे करें, हम डायरेक्ट भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं डायरेक्ट। एंड नाउ आफ्टर दैट वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज 3.2, 3.3 एंड इज इट क्लियर? एंड नाउ प्लीज दिस इज द बेसिक एंड यू टू रिवाइज, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल्स। थैंक्स।